Hello students and welcome to the online teaching learning process. Our subject is Industrial Instrumentation IME 22420 and we are on the unit number 5, that is temperature measurement, which carries 1/4, that is 14 marks. Today is our lecture number 22 and topic presentation on effects of thermocouple. Institute vision is excellence in technical education to empower youth, and on the basis of that there are three missions. Mission 1 is imparting quality technical education to prepare students with excellent technical skill. Second mission is to develop competent and employable diploma engineers as a responsible citizen, and third mission is strengthening industry institute interaction. Our electrical engineering department vision is to develop professional electrical engineers ready to face the challenges in the global environment. And on the basis of that, there are three different missions. Mission 1 is develop technically strong and professional engineers to meet industry needs. Second mission is develop ethical values, discipline and teamwork and leadership qualities in students. And third mission is develop students to enhance employability. There are three different PO. PO1 is provide socially responsible, environment friendly solutions to electrical engineering related broad based problems, adapting professional ethics. Second PO is adapt state of art electrical engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. And third PO is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. Then there are 7 different POs: basic and discipline specific knowledge, problem analysis, design development of solutions, engineering tools, experimentation and testing, engineering practice for society, sustainability and environment, project management, and last is lifelong learning. The course outcomes are student will be able to maintain different types of temperature transducers, and the learning outcomes are student will be able to maintain different types of transducer used for the measurement of various parameters. So our today's topic is effects of thermocouples. Already we have seen in the last lecture what is a thermocouple. Thermocouple क्या होता है हमने देखा, जिसमें हमने देखा था कि दो डिसिमिलर मेटल लेते हैं हम लोग, और दो डिसिमिलर मेटल को आप जब ज्वाइन करते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो एक जंक्शन जो होता है वो हॉट होता है और दूसरा जंक्शन होता है कोल्ड होता है. तो वो जो हॉट जंक्शन होता है वो हमें अननोन टेम्परेचर है, वो उसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है, और जो कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर हमें पता है. तो वो जो कोल्ड जंक्शन होता है, जो टेम्परेचर हमें पता है, उससे हम रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, और हम देखते हैं कि हॉट टेम्परेचर कितना है, एंड देन EMF विल इंड्यूस्ड इन इट एंड करंट विल फ्लो एंड वोल्टेज विल शो. तो वो था आपका थर्मोकपल क्या होता है वो. अब थर्मोकपल के बेसिक इफेक्ट्स जो है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में. उनके 4 अलग अलग बेसिक इफेक्ट्स हैं, दैट इज सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर्स इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट एंड जूल्स इफेक्ट. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. एग्जाम में ये इफेक्ट्स पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज सीबेक इफेक्ट. सीबेक इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे. अब यहाँ सबसे पहले डायग्राम देखिए. डायग्राम में 1 और 2 दिया है. 1 का मतलब एक कंडक्टर है और 2 का मतलब दूसरा कंडक्टर है. तो ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं, ये दोनों कंडक्टर्स यानी टू डिसिमिलर मेटल्स हैं. अब 2 डिसिमिलर मेटल्स हैं, एक का जंक्शन हॉट रहेगा तो दूसरे का जंक्शन कोल्ड रहेगा. तो देखिए सीबेक इफेक्ट क्या कहता है. व्हेन द जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, द EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. दिस इज नोन एज सीबेक इफेक्ट. काफ़ी सिंपल इफेक्ट है. जब दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स के जो जंक्शन हैं, वो जंक्शन के ऊपर हम अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स अगर रहते हैं उनके, तो वहाँ EMF प्रोड्यूस्ड होता है सर्किट में. उसे आप सीबेक इफेक्ट कहते हो. फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ सीबेक इफेक्ट क्या होता है. सीबेक इफेक्ट का मतलब ये है कि दो डिसिमिलर मेटल्स अगर आप लेते हो और उसका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म करते हो, एक जंक्शन फॉर्म करते हो, और वो जंक्शन के ऊपर अगर आपका डिफरेंट टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो, मेंटेन होगा ही, कोई हॉट कोई कोल्ड जंक्शन रहेगा, तो वहाँ EMF प्रोड्यूस होगा सर्किट में, एंड उसे कहते हो आप सीबेक इफेक्ट. यह डायग्राम भी देखिए, 2 जंक्शन पॉइंट आपको दिख रहे हैं. एक जंक्शन पॉइंट T दिख रहा है और एक जंक्शन पॉइंट पे T प्लस डेल्टा T दिख रहा है. एक हॉट और एक कोल्ड जंक्शन है. एक टेम्परेचर जो है वो आपने रेफरेंस करके पकड़ा है, और एक इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज है, दैट मीन्स हॉट टेम्परेचर है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर. तो ये जो दो टेम्परेचर हैं
जो अलग अलग टेम्परेचर आपने मेंटेन किए हैं, ये जब दो जंक्शन पॉइंट पे आपके अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन हो गए, उस समय आपका ईएमएफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उसे आप कहते हो सीबेक इफेक्ट। तो लिखा है द कंडक्टर 1 इज मेंटेन एट टी प्लस डेल्टा टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर में चेंज है, एंड द सेकेंड कंडक्टर 2 इज मेंटेन एट टेम्परेचर टी, लिखा हुआ है। सिंस द जंक्शन आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी जो जंक्शन है वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हुए हैं, मेंटेन हुए हैं, एंड हेंस से ईएमएफ यू फ्लो अक्रॉस द सर्किट, और फिर वहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, ईएमएफ फ्लो कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द सीबेक इफेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज पेल्टियर इफेक्ट। ये भी काफ़ी सिंपल इफेक्ट है। When current passes through the circuit of two dissimilar conductors, depending on the current direction, either heat is absorbed or released at the junction of two conductors. This is known as Peltier effect. काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब करंट आपका पास होगा बिटवीन द टू डिसिमिलर कंडक्टर, अब यहाँ पर भी हमें दो कंडक्टर्स लेने हैं, मेटल ए मेटल बी, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, मेटल ए मेटल बी ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ जब करंट आपका पास होगा, दो डिसिमिलर कंडक्टर से जब करंट पास होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द करंट डायरेक्शन, करंट की जो भी डायरेक्शन होगी उसके अनुसार आइदर हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी एट द जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। तो ये जो इफेक्ट है इसे आप कहोगे पेल्टियर्स इफेक्ट। फिर से एक बार बता रहा हूँ पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट में काफ़ी सिंपल है, यहाँ दो मेटल दिए गए, दो मेटल का जंक्शन है, डिसिमिलर मेटल्स का जंक्शन जो कि हो ही रहा है थर्मोकपल में। अब यहाँ जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो करंट जब फ्लो होगा तो आइदर एक जंक्शन पे एक तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या फिर दूसरे जंक्शन पे हीट रिलीज होंगी। ये जो इफेक्ट है इसे आप पेल्टियर कहते हो। डायग्राम में आपको दिख रहा है ऊपर में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और नीचे में हीट रिलीज हो रही है। दैट मीन्स दोनों जंक्शन पे एक तो हीट एब्जॉर्ब होगी एक जंक्शन पे, और एक जंक्शन पे हीट रिलीज होगी। तो जो पहला आपने इफेक्ट देखा सीबेक में क्या देखा आपने कि दो डिसिमिलर कंडक्टर्स थे। जब दो डिसिमिलर कंडक्टर के जंक्शन रहता है तो वहाँ जब एक इसमें टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज होगा या डिफरेंट टेम्परेचर पे आप मेंटेन करोगे तो ईएमएफ फ्लो करेगा। अब ईएमएफ फ्लो करने का मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अब सेकंड इसमें उसका थोड़ा सा एडवांसमेंट है, जब आपका करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने के बाद दोनों जंक्शंस के ऊपर एक जंक्शन पे एक तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर दूसरे जंक्शन पे हीट रिलीज होगी। So this is the Peltier effect. Now coming on to the Thomson effect, heat is absorbed or produced when current flow in material with the certain temperature gradient. The heat is proportional to both the electric current and temperature gradient. This is known as Thomson effect. यहाँ क्या बोला गया है कि heat is absorbed or produced when current flow in the material with certain temperature ग्रेडियंट। जो आपका मटेरियल है वहाँ से जब करंट आपका फ्लो करेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर प्रोड्यूस होगी। द हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू बोथ इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो हीट आपकी जनरेट हुई है इट इज़ प्रोपोर्शनल जो रहेंगी इलेक्ट्रिक करंट को और टेम्परेचर ग्रेडियंट को, जिसे आप कहोगे थॉमसन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज पेल्टियर कोइफिशिएंट। इफेक्ट तो खत्म हो गया। पेल्टियर कोइफिशिएंट क्या है? इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी which describe the capacity of material to carry thermal heat carries per unit electric charge. पेल्टियर इफेक्ट का मतलब ये है कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो खुद में से वो ये डिस्क्राइब करता है कि उसकी थर्मल हीट कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है। ये है पेल्टियर कोएफिशिएंट। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे ये डिस्क्राइब होता है, ये पता चलता है कि वो खुद में उसकी कितनी कैपेसिटी है थर्मल हीट को कैरी करने की, उसकी वो मटेरियल की कितनी कैपेसिटी, ये आप पेल्टियर कोएफिशिएंट से पता कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है मैट ए मैट बी। तो मैट ए में देखो सिर्फ आपको हीट कैरियर 6 दिख रहे हैं, लेकिन मैट बी में देखो हीट कैरियर आपको 9 दिख रहे हैं। दैट मीन्स मैट बी जो है मटेरियल बी, मैट बी का मतलब मटेरियल बी, मैट ए का मतलब मटेरियल है। दैट मीन्स मटेरियल बी जो है मैट बी हैज़ एन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी टू कैरी द थर्मल हीट। यस, एंड मटेरियल ए मैट ए जो है उसका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। सो दिस इज नथिंग बट पेल्टियर कोएफिशिएंट. So I will today summarize the today's lecture. Today we have learned the different effect of thermocouples and what is thermocouple and what are the different effects, and different effects are Seebeck, Thomson and Peltier coefficient. So up till now
Keep learning. Thank you.